In this video, we will see about enzymes. एंजाइम्स के बारे में हमें पता है कि जो काम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट करता है उसी तरह से हमारी बायोलॉजी में वही काम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं उनके द्वारा किया जाता है एंड दे आर नोन एज एंजाइम्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती है जिन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। वी नो देम बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। In these metabolic process, there are certain reactions which are anabolic and some are catabolic. कुछ बनने वाली reactions होती है और कुछ टूटने वाली reaction होती है, जैसे ATP का बनना that is anabolic, ATP का breakdown होकर energy को release करना that is catabolic, respiration जैसे process होते हैं, photosynthesis जैसे process होते हैं। तो उन reactions को normal cellular conditions में proceed करने के लिए the cell is consisting certain organic compounds which are made up of protein. They accelerate the rate of reaction. These substances are known as enzymes. They are used in biology and hence they are also known by the term biocatalyst. They accelerate the rate of reaction. किसी भी reaction की rate को बढ़ा देते हैं. They accelerate the rate of reaction. They are not consumed in the reaction. Reaction के अंदर वो खत्म नहीं होते हैं, as it is रहते हैं, but reaction की rate को trigger कर देते हैं. So let's have a look on the definition and some important discoveries related to these enzymes. Enzymes can be defined as the organic compound which is made up of protein. ये बने हुए होते हैं प्रोटीन के and they function as biocatalyst. Catalyst means they are triggering the rate of reaction. That is why they are known as biocatalyst. In a living cell, किसी भी living cell के अंदर various biochemical reaction take place in the presence of very active and organic compound which are required in very less quantity. इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम quantity में होती है. So these enzymes are proteinous compound which are made up of protein and they act as biological catalyst. They are able to accelerate the rate of reaction and they are not consumed up in the reaction. They are not consumed up or used up. They remain as it is in the living cell. These are the enzymes which run millions of reactions, biochemical reactions under normal cellular condition. They run the reaction under नॉर्मल सेल्यूलर कंडीशन. कोई भी रिएक्शन है उसको अगर हम बॉडी से बाहर करवाते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है. पर अगर यही रिएक्शन जब हमारी बॉडी में होती है तो वो नॉर्मल सेल्यूलर कंडीशंस के अंदर हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. हेंस द एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन and they function as biocatalyst in the living cell. Now the history of enzymes. enzymes के बारे में सबसे पहले prediction की थी. Existence was predicted by Bergillus, John Jacob Bergillus in the year 1835. Then it was named as the word enzyme by Kuhne. Kuhne was a person who gave these biocatalyst compound as the word enzymes. Enzyme means in yeast. It was used as enzyme for the soluble ferment of bacteria or yeast. At that time, it was believed that the living activity of the yeast is necessary for फर्मेंटेशन. उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर हमें किसी भी चीज़ का फर्मेंटेशन करना है तो उसके लिए हमें यीस्ट जो कि लिविंग सेल होती है उनकी ज़रूरत पड़ेगी. दिस हाइपोथेसिस वाज लेटर ऑन डिस्कार्डेड बाय बुचनर ब्रदर्स.
दे प्रिपेयर्ड यीस्ट एक्सट्रैक्ट, उन्होंने एक यीस्ट एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करा और उस मेडिसिनल पर्पस के लिए तैयार किया था, और फिर उसके अंदर उन्होंने शुगर को ऐड किया। यीस्ट एक्सट्रैक्ट को तैयार करके और उन्होंने उसमें शुगर को प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में ऐड किया। बट उनको ये मालूम पड़ा, मतलब इट वाज सरप्राइज फॉर देम कि ये जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट था जिसमें यीस्ट नहीं था, वह भी शुगर को फर्मेंट कर पाया। द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ द यीस्ट वाज एबल टू ferment the sugar. Then later on Buchner gave the word zymes. उन्होंने इस एंजाइम को नाम दिया zymes. बुकनर ने एंजाइम के लिए जो वर्ड यूज किया था इट वाज zymes. इनकी जो केमिस्ट्री है या उनकी जो स्ट्रक्चर है या कि किस फॉर्म में हमें मिलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसके बारे में हमें बताया समनर ने, J.B. Sumner in the year 1926, and he separated them in the form of pure crystal of urease from जैकबीन मील. जैकबीन मील से उन्होंने यूरिएस की क्रिस्टल्स को सेपरेट करके और उनकी केमिस्ट्री के बारे में बताया, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया. Then after that Sumner and Northrop, दो साइंटिस्ट हमारे पास आए थे, Sumner and Northrop. They established that chemically all the enzymes are made up of protein. उन्होंने उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हुए कहा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो केवल प्रोटीन के ही मिलते हैं. And then after that they also won the Nobel Prize for their work related to protein. Then एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास में, टी कैश एंड ऑल्टमैन. उन्होंने ये बताया कि इट इज नॉट एसेंशियल कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन के भी बने हो. दे आइसोलेटेड सम नॉन प्रोटीनियस एंजाइम जिसको उन्होंने टर्म दिया था राइबोजाइम. नॉन प्रोटीनियस एंजाइम को राइबोजाइम के नाम से नेम दिया और उन्होंने ये बताया कि ये एंजाइम जो होता है ये नॉन प्रोटीनियस होता है. इट इज द कैटालिटिक मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. इस तरह से एंजाइम्स के बारे में धीरे धीरे इन्वेंशन पे इन्वेंशन होते गए और इनकी डिटेल स्टडी होती गई. नाउ वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम्स का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं. इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है इससे अपने पास, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. हमारे पास सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है. जैसा हमने देखा राइबोजाइम. राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम, बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. जितने भी प्रोटीन है ये इसेंशियल नहीं है कि वो सब एंजाइम्स. एंजाइम की स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं हमारे पास, दैट इज प्रोटीनियस पार्ट एंड non-proteinaceous part. Together it is known as holoenzyme. इसको साथ में हम बोलते हैं holoenzyme. जो प्रोटीनियस पार्ट होता है वो लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है. तो ओवरऑल हमारे पास एंजाइम की स्ट्रक्चर के लिए दो पार्ट आते हैं, दैट इज proteinous and non-proteinous part. Now the proteinous part is known as apoenzyme. उसे हम बोलेंगे apoenzyme. Apoenzyme is the main part of protein.
the dimension of the protein molecule and the sequence of amino acid varies in different enzyme. अलग अलग एंजाइम में ये जो प्रोटीनियस पार्ट है, हमें पता है कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनका अरेंजमेंट अलग अलग एंजाइम में डिफरेंट होता है, इनका डायमेंशन डिफरेंट होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर कोलोइडियल इन नेचर. इनका जो नेचर होता है दैट इज कोलोइडियल, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल. जो प्रोटीन पार्ट होता है इसी पर ही कहीं कहीं पर एक्टिव साइट्स लगी हुई रहती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो. तो ये जो प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम कंटेन्स एक्टिव साइट और स्पेशल साइट्स वेयर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड. इन्हीं पॉइंट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है. दिस इज ऑल अबाउट एपो एंजाइम. तो एपो एंजाइम we can say they are made up of protein, they are colloidal in nature, they have large surface area, and then they contain active site. इन्हीं पर ही active site होते हैं. Overall, the proteinous part is known as apoenzyme. Now we will see about the non-proteinous part. This is the non-proteinous part. This non-proteinous part is known as cofactor. इसे हम बोलते हैं cofactor. Together, this proteinous and non-proteinous part is known as holoenzyme. इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो कहलाया जाता है एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनियस जो बिना प्रोटीन के बनता है दैट इज नोन एज कोफैक्टर. ये जो कोफैक्टर होता है इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. द फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. सेकेंड इज coenzyme, and the third one is activator. The first one, that is prosthetic group. In prosthetic group the non-proteinous organic compound, जो non-protein वाला जो organic compound होता है that is firmly attached. It is firmly attached. Firmly means that is tightly attached to the apoenzyme. ये वाला जो पार्ट होता है ये नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इस एपोएंजाइम से बहुत टाइटली अटैच रहता है और तब वो बनाता है प्रोस्थेटिक को. इट कैन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इटसेल्फ मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. यहाँ तो ये केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना हुआ हो सकता है या ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ हो सकता है. जैसे इस केस में एग्जाम्पल आता है फ्लेवोप्रोटीन या साइटोक्रोम. एग्जाम्पल फ्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम. अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट एपोएंजाइम से टाइटली अटैच होता है देन इट मेक्स प्रोस्थेटिक. सेकेंड केस इज कोएंजाइम. कोएंजाइम में नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज लूजली एसोसिएटेड एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड एंड कैन अगेन रीएसोसिएटेड, देन सच पार्ट इज नोन एज कोएंजाइम. इफ non-proteinous part is loosely attached and can be reattached again. जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है ये इससे बहुत लूजली अटैच होता है, इससे डिटैच हो सकता है और वापस रीअटैच हो सकता है, देन इट इज नोन एज कोएंजाइम. फॉर एग्जाम्पल NAD, example NAD, NADP, then FAD, etc.
The third case is activator. If the non-proteinous part is a metal ion of inorganic nature, then it is known as activator. It consists of metal ion like iron of inorganic nature. Then it is known as activator. तो ओवरऑल प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हमें पता है कि अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनियस पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट. प्रोटीनियस पार्ट लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है, कॉलॉइडल होता है एंड इट इज नोन एज एपोएंजाइम. नॉन प्रोटीनियस पार्ट छोटा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर. ये कोफैक्टर किस तरह से अटैच रहता है और किसका बना हुआ होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड इट इन 3 कैटेगरी. पहली कैटेगरी प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो कोफैक्टर होता है दैट इज टाइटली अटैच, वो उसके साथ बहुत टाइटली अटैच होता है. फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम. द सेकेंड कैटेगरी इज कोएंजाइम. कोएंजाइम में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोफैक्टर जो होता है वो इसके साथ लूजली अटैच होता है. वी कैन सेपरेट इट आउट और इफ वांटेड इट कैन रीअटैच्ड. द थर्ड कैटेगरी इज एक्टिवेटर. एक्टिवेटर में अगर कोफैक्टर कोई भी मेटल आयन होता है इनऑर्गेनिक टाइप का, देन इट इज नोन एज एक्टिवेटर. फॉर एग्जाम्पल आयरन.